as a moderator. I'm pleased to serve as a moderator. I'm pleased to serve as a moderator. I warmly welcome to all the members and stakeholders. Today, the session is 1 hour. As per the schedule, today's training session is being conducted on 10th May from 12:30 to 1:30. It is 1 hour session in a hybrid mode. The session is the financial training session, SLH M2 Q1 FY27. This session conducting in three main topics. First, cash flow. Second, profit and loss account. Third, balance sheet. Under the cash flow, there are three topics. Kindly correct your voice quality as your Shriado ma'am, your voice quality. Annual finance report FY 2026 to 27 and cash flow statement. Am I audible? Yes, okay. Is it voice clear? No, your Little voice is bit better, but there are lot of correct voice. Okay, same problem as persisted earlier in the earlier session. Okay. The internet issue. Okay. Shall we proceed with the second topic? The profit and loss, the conducting in three subtopic, PIL account, cost management, product system, ecosystem. Third is balance sheet account, which is conducting in asset, liabilities, and companies analysis. Then after this, we will conducting question answer, and we'll taking your question answer. Today's enhancing the project. So over to you, sir. See you, sir, conducting this session. Furthermore, over to you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Based on the previous year, our experiences of the previous year meeting sessions, we have been jumping our time space just because of the vastness of the content and the nature of the topic. But anyhow, this time we would like to confine our sessions within the allotted time space. Yes, it might not be implementable in a single resolution or in one go, but as feedback given by our CPO in the last training sessions, we would like to confine our training session within the time space. Okay. So it is the second training session of the FY27. Before going to open our content of the presentations, I'm just going to make a brief outlook because still we are in the first quarter of the FY27. So what kind of discipline and a kind of innovation culture we should strive for in this financial year? Based on our previous experiences, means in the last financial year we have generated approx 30 documents, and those documents are currently are being value added therein, and after completion of the post production activities, those documents with proper index and spiral binding shall be made available to all the office bearer and chief of the department. Then question would be what kind of use or what kind of benefit do you get from those documents? Definitely those set of those documents which will show all which will guide us in a way that what was our initial point and how far we have traveled in, and based on those blueprint we would try to make small and consistent effort day by day. So it is the task, actually this kind of documentation and archives related activities should be delegated to our HR department under the supervision of Chief People Officer, but currently he is
little bit busy in other activities, educational activities. That's why I was in a way left with no option but to divert those resources to our head compliance officer. Compliance branch is currently, as per our structure, falls under the tech department. So the additional task of the head compliance officer is being shouldered by our CTO. So we would give him heads up for this kind of additional obligations. In the time within 1.5 months, I hope we would have a spiral well indexed and a very detailed report card of the previous year. It might be up to 100 and above 100 pages of well documented report of our law firm. Definitely it will guide us, and in a way it will inspire to those persons who are willing to join the firm in the incoming years of training. Okay, come back to our topic. I'm going to share with you the screenshot, our screen with the help of this. Okay, respected CTO sir, is my screen being shared with you? Yes, sir. Okay. So, based on our experiences, uh, as you would be familiar with the pattern of our working style, that we generally we should not what we say we do not prefer to create a kind of sudden or abrupt disruption in our supply chain. That's why we used to take few points from the previous reports so that these series of training session would look like a kind of integrated and cohesive effort. That's why I have again repeated 2 points based on our previous deliberations, that is cost management and product ecosystem, which are numbered here in at 2.2 and 2.3 respectively. So if you see our topics of the day, then you will get a kind of a glimpse that slowly and slowly we are upgrading our activities, and we are going to generate a structured data so that uh, we could transform our activities into uh, uh, data based data based system, closed ecosystem, so that we could apply other available management theory on those data to create a maximum mileage from those set of activities. तो आप देखेंगे इसे कैश फ्लो अकाउंट है, जनरली इसमें जो अकाउंटिंग के होंगे बैकग्राउंड से उनके लिए ये बहुत सहूलियत होगी, बट नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लिए ये थोड़ा सा टफ होगा प्राइमा फेसाई। बट ध्यान देंगे कि एक होता है थियरी, उसको हम लोग प्रैक्टिस में जीते हैं, और यहाँ पे क्या है, हमारी प्रैक्टिस है जिसको हम थियरी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यानी एक लेमैन आदमी भी छोटे छोटे डेटा को यहाँ पे टाइम एंड अगेन उसके सामने आएगा, सर्टेन इंट्रीज आएगी, एक्टिविटीज आएगा, उसको कैसे हमें रिफ्लेक्ट करना है अपने डेटा में, वो यहाँ पे सीखेगा। तो इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि एमबीए से बेहतर है कि आप किसी जस्ट मिनट जस्ट मिनट
तो एमबीए से बेहतर करने से बेहतर हम मानते हैं कि किसी कंपनी के ओनरशिप को रन किया जाए या उसमें पार्टिसिपेट किया जाए मैनेजरियल एक्टिविटीज में, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। एनीवे, तो आप यहाँ पाएंगे कैश फ्लो अकाउंट। तो अब इसमें जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे देखें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए हम लोग कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के। आप अपनी हेल्प के लिए 11th का अगर जानना चाहे कि अपने डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो 11th एनसीईआरटी आता है, आप 11th का पार्ट फर्स्ट रख सकते हैं। उसमें बेसिक अकाउंटिंग है। और हम I would suggest to all the chief of the department that he does have, must have, what we say, a copy of NCERT, class 11, volume 1st. This kind of stationery cost shall be always, as I promised earlier, always be shared. Burden of these kind of stationery will be beared by the firm, back office. तो आप उसमें पाएंगे कि अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे उसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट असल में इसको हम लोग को स्लाइड पे लेना चाहिए था, बट हमारे CTO, as I told you that he is overburdened, that's why he could not prepare, he was not in position to prepare all the slides. That's why for the purpose of accounting principle, I would take the help of a reference book that is written by D.K. Goyal and Goyal, Accountancy, Class 11, Volume 1st. In that particular source of literature at chapter 3, there is a topic accounting principles running from page 3.1 to 3.22. With the help of those source of document, I would share with you certain basics कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो सुनने में तो लगेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, बस इसको आप ऐसे जानिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम किस तरीके के पहले व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज प्रिंसिपल, ये हम लोग अपने इंटर्नशिप या उस क्लासेज में रखेंगे, तो उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस बहुत नहीं करेंगे। यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि जैसे उस चैप्टर में हम देखेंगे तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो हम अकेडमी पे नहीं जाएंगे। अगेन नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आप बुक से वहीं से मिल जाएगा, लिटरेचर आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल से 20 पेज का है, मिल जाएगा। इसमें एक आता है कि काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो एक्चुअली जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एज्यूम्पशंस की, हम कैसे डेटा को अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जैसे आप ध्यान दें, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, या ऐसे गुडविल पे, सोशल एस्टिमेट्स पे, हर उस चीज को हम लोग जिसका अपने आप में एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होता है, बट उसको हम लोग प्रॉपरली एंट्री नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे अब आपकी फर्म अपने उन सारे एक्टिविटीज को ट्रेस करेगी, उसको ट्रैक करेगी, उसको अकॉर्डिंगली रेलिवेंट डेटा में फीड करेगी, चाहे जनरल हो चाहे लेजर हो। तो उसकी मदद से हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करेंगे और उसके बेसिस पर हमारा पीएल अकाउंट तैयार होगा, पीएल स्टेटमेंट तैयार होगा। और इन दोनों की बेसिस पे हम अपने बैलेंस शीट को भी एज ऑन डेट हम उसको शेयर कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक ब्रॉड पिक्चर होगा कि हमारे जो एफर्ट्स हैं कलेक्टिवली, उसका फाइनेंशियल आउटकम कैसा है। और इसमें मैनेजमेंट की इफिशियंसी, पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हमारा जो प्राइसिंग पैटर्न है, या और जो हमारे फाइनेंशियल निटी ग्रिटी है, वो भी हम लोग जानेंगे भी, अडॉप्ट भी करेंगे, औरों को भी एजुकेट करेंगे, ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हम अल्टीमेट कंज्यूमर तक पास ऑन कर पाए। तो एज आई टोल्ड यू टाइम एंड अगेन दैट कि द हाउ मच you do earn from delivery of legal services are not very relevant and material. Generally, I do prefer to focus on the bottom line, that is what kind of surplus do you generate from your set of activities, yeah, what kind of how much wealth have you created in the previous year of practice.
इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि सिविल रिपोर्ट को बेहतर करना। तो धीरे 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 करके करेंटली सिविल रिपोर्ट को बेहतर करना एक्चुअली हर किसी का अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसके अपने एक्टिविटीज से होता है, तो वो उसके सिविल रिपोर्ट को कितना अपग्रेड करता है ये वो बेहतर जानेगा। बट हम अपने ट्रांजेक्शन्स, अपने रिवर्स ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे देखेंगे कि हमने किसी के सिविल रिपोर्ट में इजाफा या इंप्रूवमेंट में कितना मदद किया है। तो आते हैं, जैसे हमारा आते हैं पॉइंट पे कि काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें कुछ एज्यूम्शंस हैं और कुछ कन्वेंशंस हैं। कहेंगे एज्यूम्शंस क्या है कन्वेंशंस क्या है। इसको हम लोग जैसे हम होता है ना 1+1=2, कोई कहे कि क्यों हम मान ले कि 1+1=2, या व्हाट इज 1 मैथमेटिक्स के एंगल से देखेंगे तो एक होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो बेस होता है, बेसिक्स होता है, एक उसको नीचे आते 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 एक ऐसा लेवल होता है जिसपे हमें कुछ एज्यूम्शन लेना पड़ता है कि नहीं, हमें इसको एक एक नाम्स मान के, जैसे वेरिएबल्स, या हम लोग कहते हैं कि एटम से छोटा कोई यूनिट नहीं है, जबकि बाद में पता चला कि वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है। फिर हुआ कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई नहीं तो होता, नहीं उसमें भी एंटी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके मिलते हैं। तो वो अभी डाउन द नीचे जाता जाएगा माइक्रो लेवल पे या नैनो लेवल पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाएगी। बट हम लोगों ने काफी करेंटली हमारा मानना है कि फ्री कोई चीज एग्जिस्ट करता है तो एटम लेवल पे ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एक एटम का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि यहाँ से हम अपने एज्यूम्शंस को डेवलप करते हैं, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का नेचर स्टडी करना होता है। तो वैसे अकाउंटिंग में बेसिक जो चीजें होती है कि कहाँ से हम कैसे तथ्य को हम अपने काम के लिए एक्सेप्टेबल या रिलेवेंट मानेंगे। तो उसमें जैसे हेडिंग है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो आते हैं जैसे accounting concept are assumptions, fundamental accounting assumptions as per AS1। ये हम बुक से बता रहे हैं, यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे, बस छोटा सा हम बता रहे हैं कि उसमें जैसे 3 है, उसको कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्शंस में 3 है। एक होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और तीसरा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आप कहेंगे ये बहुत अजीब सा वर्ड लग रहा है, डोंट वरी, इस पे फुल फ्लेश लेक्चर आपको मिल जाएगा। हम बस यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसमें हम अपने प्रीवियस ईयर्स के कुछ डेटा यहाँ पे हमें शेयर करने हैं, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड दे रहे हैं कि ऐसे जो एलिन वर्ड है फॉर ए प्रैक्टिशनर बिलोंग्स टू नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, वो कैसे अपने एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डेटा को धीरे 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 करते करते उसको जो 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 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग के जो नॉमेनक्लेचर है उसके साथ कैसे उसको कोलेट करेगा। तो बहुत ही लेमन के लेवल पे ये वर्ड पहली बार प्लेटफॉर्म से सुनने को मिलेगा, बट डेफिनेटली ये वर्ड्स अगेन हम रिपीट करेंगे इनकमिंग ट्रेनिंग सेशंस में, जहां पे ये देखिएगा धीरे धीरे अपने थ्रू पिक्चर्स एंड कलर को के साथ हमारे बीच रहेगा, हैविंग इन इट्स एम्बिट आवर रियल टाइम डेटा। तो जैसे एक है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कभी भी किसी एंटिटीज का जब भी आप कोई स्टेटमेंट या अकाउंटिंग या अकाउंट के पर्पज से जब डेटा तैयार करते हैं तो आप मानते हैं कि वो गोइंग कंसर्न है, मतलब वो एक कंपनी है जो जिंदा है, चल रही है, कार्य कर रहा है, वो डिसफंक्शनल, नॉन फंक्शनल या मरा हुआ नहीं है। तो एक गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट होता है। तो एक ये नहीं कहेंगे तो लॉ में भी है हम कि बिल्कुल, यानी कंपनी भले ही वो नेचुरल नहीं है, एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, मगर हम उसको गोइंग कंसर्न के रूप में देखते हैं। मतलब वो एक व्यक्ति है जो अपने एक्टिविटीज के जरिए डेटा जनरेट करता है। तो कौन से डेटा? ऐसे डेटा जिसका मनी वैल्यू होता है तो भी मिलेगा कि ऐसा कि सब की कोई कंपनी है वो अपने कुछ एक्टिविटीज कर रही है, उसके चलते डेटा जनरेट कर रही है। तो डेटा कैसा हो जिसको अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट करेंगे, सब आगे मिलेगा। तो हम उस कंपनी को कहेंगे कि वो एक गोइंग कंसर्न है। यानी अकाउंटिंग के लिए पहली प्राथमिकता है कि कोई एक गोइंग कंसर्न होना चाहिए, मतलब एक कंपनी हो, भले उसमें 1 लोग, 10 लोग, 100 लोग काम करें, बट वो एक गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है, ये वेरी फंडामेंटल एज्यूम्शन है कि एक गोइंग कंसर्न है, मतलब एक गोइंग कंसर्न एक गोइंग कंपनी है, ऑनगोइंग कंपनी है जिसका हमें अकाउंट मेंटेन करना है। अकाउंट मेंटेन करेंगे मतलब उसमें 3 तरीके के डॉक्यूमेंट हम जनरली देखेंगे, कैश फ्लो अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट।
तो हम आते हैं जो हमारा एज्यूम्पशन सा पहला है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग के बेसिस पे हम लोग अपने इस फील्ड में वेरी फर्स्ट मतलब अपना कदम रखते हैं। दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मतलब कंसिस्टेंसी का भी कॉन्सेप्ट इसमें हमको वेरी बिगिनिंग से लेके चलना पड़ता है। हमारी एंट्री चाहे नील हो चाहे जीरो स्टेटमेंट जनरेट हो, बट हमारा एक कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, ये अकाउंटिंग हमसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अकाउंटिंग को गले लगा रहे हो तो कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे। जैसे जो एंटिटीज को आप फॉलो करते हैं वो एक गोइंग कंसर्न है। दूसरा वो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मतलब वो कंसिस्टेंटली डेटा जनरेट करती है, आप उसको ट्रैक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपकी ऑब्लिगेशंस। और तीसरा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे किसी ने हमसे कहा कि हमारा ये काम कर दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। हमने काम किया, वो पैसा अभी पर्टिकुलर किसी और डेट पे जनरेट होने की बात हुई। एक होता है पैसा जनरेट होना और एक होता है पैसा देने का प्रॉमिस लेना। तो इसमें एक होता है एक्रूअल और एक होता है आना। यानी एक होता है कि हमारे अकाउंट में कब पैसा आया और एक होता है कि कब पैसे पे हमारा ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया, मतलब हमारा राइट क्रिएट हो गया। तो अकाउंटिंग में एक्रूअल कॉन्सेप्ट को प्रीफर करता है। ये एक्रूअल का कॉन्सेप्ट आपके इनकम टैक्स एक्ट में भी मिलता है। तो एक्रूअल बेसिस पे हम अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। ठीक है, जैसे किसी ने कहा है कि हम देंगे मगर दिया नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो ये तीन हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग के एज्यूम्पशंस हैं जिसके बेसिस पर हम ऐसे डेटा को देखते हैं। कुछ डेटा हम एक एग्जांपल के तौर पे SLA 01 का शेयर करेंगे आप लोग के बीच, जिसमें ये कहीं न कहीं रिफ्लेक्टेड होगा। अभी वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बट वो धीरे धीरे हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे। ओके, और उसमें अदर अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस तीन तो मेन हो गए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वन, सेकंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और थर्ड है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये तीन हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग के एज पर AS1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड -1। अच्छा, अदर अकाउंटिंग के एज्यूम्पशंस क्या है? नंबर ऑफ एज्यूम्पशंस है, धारणाएं हैं जिसको लेके हमें चलना पड़ता है। जैसे माइथोलॉजी में एज्यूम्पशंस होते हैं ना, धारणाएं होती है, वैसे सब्जेक्ट के भी अपने एज्यूम्पशंस होते हैं। तो जैसे अदर एज्यूम्पशंस में क्या है कि जैसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करके गया है, तो बट हमने तीन को रख दिया फंडामेंटल नेचर का। बाकी के एज्यूम्पशन है जैसे वो भी काम के हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को रिफाइन करने में काम आएगा। जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी जब आप एक बिजनेस को रन करते हो तो बिजनेस को एक एंटिटी मानते हो। आप कहेंगे ये गोइंग कंसर्न के साथ कंफ्यूज कर रहा है, बिल्कुल नहीं। गोइंग कंसर्न मतलब वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि वो बिजनेस अपने आप में एक एंटिटी है। यानी किसी ने 100 रुपया हमको हमारे अकाउंट पे दिया, अगर करंट अकाउंट हम रन करते हैं बिजनेस का, तो कहा जाएगा कि मिस्टर एक्स हैज क्रेडिटेड 100 रुपीज इनटू द अकाउंट ऑफ सेटल हाउस एंड कंपनी। भले ही वो किसी व्यक्ति के द्वारा मैनेज्ड है, साइंड है, ऑथराइज्ड है, वो अलग है, मगर यहाँ पे बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। फोर्थ है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब हमारा मेजरमेंट का यूनिट क्या होना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम अपने इस अकाउंटिंग के डेटा में रिफ्लेक्ट करें। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मनी मेजर, जिसको मनी के रूप में मेजर कर सके, हम सिर्फ उस स्टेटमेंट या उस डेटा को अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे हम कहें कि राम ने श्याम को कुछ ऐसा, हाँ, राम ने श्याम को सिविल लाइन से राम ने श्याम को ले आके संगम पे छोड़ा जिसकी दूरी 10 किलोमीटर थी। अब इसमें इसको हम मनी के रूप में कैसे मेजर करेंगे, तो ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। वही हम कहेंगे कि राम ने सिविल लाइन से श्याम को रिसीव किया और 100 रुपए लिया, उन्हें संगम छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे राम हमारे कंपनी का आदमी है, तो उसने 100 रुपया खर्च आया, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे आया खर्च 100 रुपया। तो ये सेंटेंस हमारे लिए मनी मिजरेबल, मनी के रूप में ये मेजर कर रहा है उस कॉस्ट को, तो ये हमारा डेटा में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज गुडविल, अदरवाइज उसमें हैप्पीनेस या कोई ऐसा डेटा जिसको मनी के रूप में हम मेजर ही नहीं कर सकते, उसको अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। कहेंगे ये क्यों, मतलब कि ऐसे सारे डेटा जिसका एक मनी मेजरमेंट है उसको ही हम अपने डेटा में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कई इसका वाइस वर्सा, कई ऐसे भी एक्टिविटीज होती है जो मनी के फॉर्म में मेजरेबल नहीं होती, फिर भी गवर्नेंस में हम उसको करते हैं।
तो जिसको कहेंगे वो कहाँ काम आता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिन या किसी और ट्रेनिंग सेशन में। अकाउंटिंग में हम लोग मनी मेजरेबल डेटा को लेते हैं, यानी हमारा फोर्थ जो एज्यूम्पशन है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिफ्थ एज्यूम्पशन हो गया मनी मेजरेबल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ जो कॉन्सेप्ट है यानी एज्यूम्पशन है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, यानी अकाउंटिंग पीरियड वाइज होता है। इसमें हम लोग 1 अप्रैल टू 31 मार्च के अकाउंटिंग पीरियड को लेके चलेंगे। इसमें भी कुछ आगे चीजें अभी आप आगे जाके सीखोगे कि एज ऑन डेट कैसे होता है, एट द लास्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो रियल टाइम के डेटा दिखाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ईयर के लास्ट तक का दिखाते हैं, तो उसी में एज ऑन डेट, एज ऑन ईयर एंड ऐसे करके चलता है। तो सब आगे अभी आएगा। हम लोग एक बेसिक्स हम लोग नॉलेज रखेंगे ही रखेंगे ताकि हम अपने वैल्यू एडिशंस को प्रॉपरली इवेल्युएट कर पाए, सर्विस प्रोवाइडर के भी लेवल पे, हेड ऑफ द सेक्शंस के लेवल पे और चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट के लेवल पे भी ये काम आएगा। तो ऐसे नेक्स्ट हमारा एज्यूम्पशंस है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट वैसे भी हम लोग का बड़ी बेहतर है किसी भी एक्टिविटीज के पीछे जो हिडन कॉस्ट है वो हमारे कितने रिसोर्सेस कंज्यूम करती है, अगर वो मनी मिजरेबल है, मनी के फॉर्म में मिजरेबल है, तो उसके कॉस्ट को हम रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एज्यूम्पशन है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमें भी रिवाइज करना पड़ेगा। ड्यूअल थ्योरी को हमने काफी समय पहले पढ़ा था, बट एनीवे इसको हम देख ले रहे हैं। Anybody from the participants belong to the accounting background, then he would correct me in case I'm committing any mistake. तो बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरेबल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ओके, कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया हमारा। और ड्यूअल एस्पेक्ट, ओके ओके, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूअल एस्पेक्ट, मतलब उसके दो एस्पेक्ट, कोई लेता है कोई देता है, वैसे कई एसेट कई लाइबिलिटीज। एनीवे इसमें कहता है कि इन अदर वर्ड एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। ये ड्यूअल कौन से एस्पेक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी ने अपने अकाउंट से पैसा निकाला और किसी के अकाउंट में डाला, तो एक जगह डेबिट होगा एक जगह क्रेडिट होगा, तो इसमें डबल एंट्री सिस्टम चलता है एक तरीके का। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं, यानी कोई भी एक्टिविटीज अपने आप में सिंगल नहीं होती, यानी हम इसके एंट्री भी करेंगे तो डबल एंट्री करेंगे। इसीलिए अगर 01 से 03 को कोई इन्वेस्टमेंट या एसेट डाइवर्ट किया गया तो एक जगह पे डेबिट होगा एक जगह पे क्रेडिट होगा। तो इससे हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये भी एक एज्यूम्पशन है, इसको हम लोग प्रीफर करेंगे अकाउंटिंग में। वैसे ही है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, यानी हम ऐसे कोई भी कैपिटल या रिसोर्सेस जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है या डेवलप किया है, तो उसमें जो हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है हमको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमने यहाँ पे किया है तो हमारा जो रिवेन्यू विजिबिलिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे हम अक्सर जो हम लोग टूल्स के तौर पे यूज करते हैं कि हीट, नॉइज और यूनिट इकोनॉमिक्स, ये जो 3 हम लोग टूल्स अडॉप्ट करते हैं, तो ये एक तरीके का हमारे रिवेन्यू रिकॉग्निशन का ही अप्लाइड वर्जन है। वैसे ही और है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट है, फिर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। तो मैचिंग और ऑब्जेक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे हम लोग सीख लेंगे। ये यानी कुल मिला के हमने 11 हमारे ऐसे एज्यूम्पशंस थे जिसको हमने ऐसे ही बस नॉमेनक्लेचर आपसे शेयर किया है। डिटेलिंग आगे जाके हम लोग धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे और एक दूसरे से लर्न करते जाएंगे। वैसे ये हमारे कुछ यानी कुल मिला के 1 to 11 हमारे एज्यूम्पशंस हैं। अगेन आई रिपीट, out of 11 there are 3 assumptions which do fall into the category of fundamental accounting assumptions that are as such. First is going concern concept, second is consistency concept, and third one is actual concept. I would say that if you forget all the other assumptions except these 3 then your concept of accounting will hold its ground always. वैसे ही कुछ हमारे कन्वेंशंस है, तो उसमें कन्वेंशंस में होता है कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस में कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म,
तो कुछ कन्वेंशंस भी है, जिससे कंजर्वेटिज्म को इसको हम समझे ऐसे कि जनरली हम अप्रोच कौन सा फॉलो करते हैं। तो इसे फुल डिस्क्लोजर की कोशिश ये होती है कि चीजों को, डेटा को दिखाते हुए चले, देखते हैं उसमें कोई खामी होगी तो हमारी टीम बता देगी। वैसे ही एक कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटीज कि हम अक्सर कहते हैं कि चूंकि मटेरियलिज्म, चूंकि मनी ड्रिवन ये स्टेटमेंट है, एक्टिविटीज है, तो मनी के चलते एक प्रॉफिट जनरेट होता है, तो प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज करती है बिजनेस, तो इसमें मटेरियलिटी का एक एस्पेक्ट होता है। तो अगर कोई एक्टिविटी जिसमें मटेरियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, कोशिश करें कि उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में थोड़ा सा डाउन द लाइन रखें फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। वैसे ही एक कंजर्वेटिज्म का एक कन्वेंशन है, मतलब यहाँ पे जब तक जैसे किसी ने कहा कि हम ये केस देंगे बट वो केस अभी आया नहीं, तो हम कंजर्वेटिव फिगर लेंगे कि नहीं नहीं अभी वो लीड ही है, अभी वो अकाउंट पे जाएगा, कॉन्टेक्ट पे जाएगा, फिर अकाउंट पे जाएगा, फिर जब डील पे जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग अपना प्रोजेक्ट या प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जाएंगे। तो एक कंजर्वेटिज्म रहना चाहिए, यानी किसी ने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ ये हमारा, हम आपको ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उसको हम अपने अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, यानी जब तक उसमें एक्रूअल बेसिस पे जब आ न जाए तब तक हम उसको अपने अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच दिखाता है, बट अकाउंटिंग इसको प्रीफर करती है। तो ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम लोग, आगे लिटरेचर भी मिलेगा, और हम लोग धीरे धीरे अपने खर्चे का रख रखाव इस सब चीजों में इसका यूज करेंगे। वैसे ही छोटा सा है कि नेक्स्ट है 1.2 में एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट FY 26-27, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं 1.2 के लिए। बहुत ही लेमन डेटा है, तो कहेंगे ये कैसे यूज करेंगे। अब देखिए सपोज अब ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, हमारा लास्ट ईयर का FY 26 का है। अब FY 25-26 दो बार कहने से अच्छा है हम उसकी अपर इंड पे 26 बोलेंगे, ताकि हम यहाँ पे भी टाइम को लेके इकोनॉमिकल रहे। तो देखिए FY 26 का एक ब्रांच का ये हमारा डेटा है, जनरली इसको हमें पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट अगेन आई रिपीट हियर, इट इज द GST इंटर्ड डेटा ऑफ द SLA 01। तो I have already shown these data on the GSTN portal. In such in such situations, I would not hesitate to share this data once again for the purpose of our academic performance. That's why I have shared here with you this kind of data, so that we could support our concept of assumptions and conventions which are necessary, which are essential for our accounting practices। तो इसको हमने यहाँ पे शेयर किया है। तो जैसे ये देखिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, मगर ध्यान दीजिए कि इसमें वही डेटा है जो मनी मिजरेबल है, मनी के रूप में जिसको किया है, और ये एक्रूअल बेसिस पे है, मतलब आने के बाद इस पे रिफ्लेक्ट हुआ है। इसमें जो हमने आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर किया है वो सारी चीजें, जैसे हमने कहा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब इसलिए 01 का है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मतलब हमने इसकी क्वार्टर्स, हर मंथ का हमने डेटा डाला है, नील रहेगा तो नील लिखेंगे। और क्या है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मतलब अकाउंट में आने के बाद, यानी एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसके बेसिस पे हम अपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को यहाँ पे हम एक छोटा सा आप लोग के सामने एक एग्जांपल दे रहे हैं। धीरे धीरे सारे डेटा स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे और प्रॉपर अकाउंट बुक के रूप में हम लोग के सामने आएंगे। इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारी टीम कर रही है, और in the archives of the firm we would have all those data which to somehow your company has generated in the previous years, वो सब भी हमारे आर्काइव्स में रहेगा। और इसको लगातार हम लोग अपने फ्यूचर विजिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। तो आते हैं जैसे इसमें बिजनेस हिस्ट्री, अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए इसमें एक था हम लोग कॉन्सेप्ट जो शेयर किए थे 1.1 में कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तो ये मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक का है। अब इसमें कुछ चीजें इसमें आप जब नहीं दिख रही होगी, जैसे इसमें ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें नहीं दिख रहा है। इसमें फुल डिस्क्लोजर में अभी ढेर सारी चीजें हैं जो इसमें नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसमें ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड रा फॉर्म काइंड ऑफ डेटा है। इसको हम लोग यहाँ से पहले तो ये भी नहीं था,
यानी अभी हमने बहुत ही सिंगल पेज में मंथ, अमाउंट, कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेज है, इसको हमने यहाँ पे शेयर किया। और ध्यान दीजिए ये हमारे प्रीवियस ईयर के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के तौर पे हम इसको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, 1.2 का जो हमारा कंटेंट है। तो इसमें हम देखेंगे मंथ 1, क्वार्टर 1 किसका, FY26 का, तो हमारे इनवॉइस है, अमाउंट है, ठीक है। ऐसे करके हमारे टोटल इनवॉइस 146 है, जीएसटी पोर्टल पे हम लोगों ने फीड किया, अमाउंट इसका यहाँ पे किया। उसके नीचे क्या है, नीचे कुछ नॉमेनक्लेचर हम शेयर कर दे रहे हैं कि एवरेज इनवॉइस वैल्यू। तो नंबर 146 टोटल इनवॉइस, टोटल अमाउंट के टर्म में ये, तो हमारा पर इनवॉइस जो हमारा वैल्यू है तकरीबन 2355 का हमारा एक इनवॉइस आता है। अब कहेंगे कि नंबर ऑफ इनवॉइस बढ़ा के बिजनेस मॉडल को बढ़ाया जाए कि हम पर इनवॉइस सर्विसेज को प्रीमियमाइज करके बढ़ाएं, तो इस सब चीजों पे बिजनेस के डिसीजंस डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई वी जनरली डू हैव फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेशन इन आवर लिस्ट ऑफ कैलेंडर्स, लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स। ये आपके बिजनेस मॉडल को डिजाइन करने में हेल्प करता है। तो AIB हमने लिखा है, प्रीवियस ईयर्स के भी इसके अपने कंपैरेटिव डेटा है, उसमें कम के थे, तो उसमें उस साल का इनवॉइस, उस साल की रिवेन्यू, उनका आपस में जब डिवीजन करेंगे जो आएगा, तो आप पाओगे कि आपकी सर्विसेज कितनी प्रीमियमाइज हुई है, या उसमें कितना महंगाई रिफ्लेक्टेड है, कितना उसमें आपके जो वेंडर्स का कॉस्ट किस तरीके से बढ़ा है, घटा है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। वैसे एवरेज AMI, एवरेज मंथली इनवॉइस, तो हमारा जो पर मंथ का जो हमारा इनवॉइस आया 28,658, ये हमारे 01 का है। तो हमने कहा तो ये आया, ये प्रीवियस ईयर से बेटर हुआ। तो ये भी बताता है कि आप अपने पर्टिकुलर एक ब्रांच को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। 0 से जर्नी हुई है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिकली ग्रोन्ड है, तो हम लोग के पास प्रीवियस ईयर्स के डेटा है। तो वैसे ही आपका जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए NA नॉट अवेलेबल, NP नेट प्रॉफिट नॉट अवेलेबल। वैसे जब ये आप कहेंगे ये क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे अकाउंट के जब तक और डेटा स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं आएंगे, ये सब डेटा हम फॉर्मूलाज को हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे, मतलब का वैल्यू टर्म में नहीं रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। वैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परसेंटेज ग्रोथ हमने निकाला है, तो बेसिक मैथमेटिक्स का भी कैलकुलेशन हम लोग सीखते जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि हमको हाई स्कूल में मैथ पढ़े हो, हम लोग ऐसे ही करके सीखेंगे कि जितना हमारा डिफरेंस आया है पिछले साल से इस साल का, डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर का हमारा जो टोटल रिवेन्यू इनटू 100%। दैट्स व्हाई 10 वी हैव जनरेटेड, वी हैव क्रिएटेड प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ ऑफ 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो हम 25% का हमारे बिजनेस में मनी टर्म में ग्रोथ हुआ है। कहेंगे मनी टर्म में यानी कैपिटल के टर्म में भी बहुत हुआ होगा, गुडविल या और भी रिफाइनमेंट हुआ, बट मनी टर्म में तो ये 25% का। अब इसको आप देखेंगे हमारा नेशनल GDP ग्रोथ क्या है, हमारा ईयर स्टेट का ग्रोथ क्या है। तो हम लोग इस तरीके से अपने डेटा को गवर्नमेंट के जो हमारे स्टैंडर्ड डेटा है उसके साथ भी धीरे मैच करके देखेंगे कि हमारा जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, जो लाइन ऑफ प्रोग्रेशन है या रेट ऑफ द प्रोग्रेस है, वो जस्ट कहाँ पे अपने बेंचमार्क को मीट कर रहा है, कहाँ पे और इम्प्रूव करना है। जैसे इसका हमने इसके प्रीवियस ईयर के डेटा देखिए, उसी का यहाँ पे कंपैरेटिव, यहाँ पे कुछ वर्ड है, स्टैंड एलोन है, कंसोलिडेटेड है, ये सब अभी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। बस नॉमेनक्लेचर अगेन लास्ट के ट्रेनिंग सेशंस में हमने, प्रीवियस फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेशंस में हमने ये सब चीजें डिस्कस किया है। अगेन हम यहाँ कर रहे हैं ताकि हमारे माइंड में एक बेसिक कोई 02 है, 03 है, 04 है हमारा, तो जब वो अपने यहाँ अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग डेवलप करें तो एटलीस्ट दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ डेटा, so that these data would help them in designing their delivery model in more robust and efficient manner. तो इसमें देखिए FY24 का हमारे की ब्रैकेट इनवॉइस कितने वॉल्यूम, वैसे FY25 के 26 के क्वार्टर यहाँ पे। अगेन आई वुड से दीज आर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, but in the journey of any particular entities, we in the beginning we do not have very structured data. That's why we could expect from ourselves that we should start tracking our business activities from very zero, from very initial point to 100 to its climax. So at least
these kind of compliances we do expect from other branch owner, other yes branch owner. तो इसमें देखेंगे हमारे पास एक 24-25 में स्टैंड एलोन मीन्स कि कोर एक्टिविटी से कितना आया, तो 13% का था। वैसे 25 से 26 में जाएंगे तो कोर एक्टिविटी से कितना आया, जो भी आया 69,000 का इनहेंस या इजाफा हुआ था, ये 25%। कहेंगे इसके नीचे कंसोलिडेटेड क्या है। कंसोलिडेटेड होता है जब भी आप जाएंगे, इसमें स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे आगे, स्लाइड भी है इसमें, उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे कैश फ्लो में कैसे कैसे या हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरीके का डेटा रिफ्लेक्ट होता है। तो इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग, इन फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम कोर एक्टिविटीज, तो ऐसे करके हम कंसोलिडेटेड बनाते हैं जब, तो ये आता है। तो वो ये कंसोलिडेटेड टर्म में हमारा था। तो इसमें पाएंगे कि इसमें जो +24 है ये हमारे अदर सोर्सेस से, कि इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से, जिसमें एसेट्स के हम फर्म का एसेट इन्वॉल्व किए थे, तो उसके जरिए आया। तो ये हमारा कंसोलिडेटेड फिगर इतना आया है। तो कंसोलिडेटेड फिगर में हमारा ग्रोथ 23% का है। नीचे देखिए लाइबिलिटीज का, अगेन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ये हमारा नॉट अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नॉट अवेलेबल है, और रिजर्व्स नॉट अवेलेबल है। कहेंगे ये सब हमारे लिए रिलेवेंट कैसे है। ये जो आज का हमारा इन्विटेशन है उसमें टॉपिक देखेंगे, जो सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है, टॉपिक है, उसके जब डेटा हम लोग स्ट्रक्चर करने लगेंगे तो हमारे पास ऐसे डेटा भी आने लगेंगे। और आई कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ, we could expect from ourselves that we would be in positions to have a proper accounts of our business, so that proper elaborated and state of art account book for our business. Yes, there might be some compliance cost of developing these kind of accountings, but we have a kind of aspirations to maintain all those systematic and scientific data get reflected into our account statement. तो ये हमारा इसमें था कि हमारा 1.2 का एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट का एक छोटा सा हमने, उसमें है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहां से हम आते हैं अपने स्लाइड पे आते हैं, जिसमें देखेंगे कि कैसे कैसे डेटा उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। तो उसमें हम आएंगे, ये स्लाइड एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस सेशंस की दैट from FY27 onward, your firm, all the speakers are expected to use the slide for their presentations. That's why I am bound by our promises also. Yes, these slides have been prepared by our CTO, and I would give him full credit for assisting as the 01 back office in this crucial moment. तो आप इसमें देखेंगे कैश फ्लो अकाउंट। अब इसको हम स्प्लिट करें अपनी स्क्रीन को, तो ये स्प्लिट इसलिए करें ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाए कि ये कैसे रेलिवेंट है हमारे प्रेजेंटेशंस के लिए। तो आप इसमें देखेंगे इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इन्विटेशंस में तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्लाइड, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द स्लाइड। कैश फ्लो अकाउंट ये हमारा पॉइंट 1.3 टॉपिक का, पीएल अकाउंट हमारा टॉपिक 2, और बैलेंस शीट अकाउंट ये टॉपिक 3। तो इसमें हम लोग फर्स्ट स्लाइड में हमारी समरी है। सेकेंड स्लाइड पे आते हैं हम, तो सेकेंड स्लाइड पे आप देखेंगे कि इसमें हमारे कैश फ्लो अकाउंट में कैसे कैसे डेटा हमारे आने वाले सेशंस में देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये हम एक मोटी मोटा लेमैन के रूप में रख रहे हैं। आमतौर पे एडवोकेट इस सब चीजों पे कम काम करते हैं अपनी टीम के, और हमारा कहना है कि जब तक हम अपने, अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट जनरेट करना है अपने लाइफ में, तो अपने हर छोटे से छोटे एक्टिविटीज को ट्रैक करना सीखिए। तो स्मॉल और कंसिस्टेंट स्टेप्स को आप ट्रैक करना शुरू करिए, और ट्रैक उन स्टेप्स को करिए जिसमें हमने अभी अकाउंटिंग के जो एज्यूम्शंस डिस्कस किए। तो डेफिनेटली आप सभी अपने लाइफ में एसेट्स या वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। कहेंगे इसमें फर्म हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी। ये सिर्फ एक ब्रांच के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एस्पिरेशन नहीं है, ये बाकी के भी ब्रांचेस के हैं, और इवन ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट कैन मेंटेन his or her own account
तो इसमें देखिए कैश फ्लो अकाउंट में 3 हमारे डेटा आते हैं, 4 आते हैं। ये सब हमारे अकाउंट, हमारे जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा थे, आने वाले कल में इस पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक छोटे से एग्जांपल के लिए अगर हमने अगर आपसे हम कहें तो हमने इससे पहले जो हमने वन शीट शेयर किया था वो हमारे सारे के सारे डेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से थे जो स्टैंड अलोन में थे। वैसे ही कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो हमारे फर्स्ट वाले पेज पे जब हमने उसमें दिखाया था, तो जिससे उसमें हमने कंसोलिडेटेड फिगर जब दिखाया था, तो उसमें ध्यान दीजिए कंसोलिडेटेड में ये जो 24,000 है, तो ये है कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज 1.3 का जो स्लाइड है वहां से आया। वैसे ही कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी आते हैं, जनरेट होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा नेट कैश फ्लो एनुअल बेसिस पे क्या रहा है। तो हमारे इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में देखिए नेट कैश फ्लो एनुअल बेसिस पे जो FY26 का था 3,43,891 था। तो देखिए ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बट इसको हम लोग धीरे धीरे स्ट्रक्चर कर लेंगे। तो ये हमारे कैश फ्लो अकाउंट में कुल मिला के 3 सोर्सेस से जो हमारे फ्लो होते हैं, कैश का फ्लो होता है, उसको एंटर किया जाता है। एक तो हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जो लीगल हमारी जो कोर एक्टिविटीज है वहां से। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और जैसे हमने सपोज ट्रेडमार्क हमने लिया, तो ट्रेडमार्क हमने उसमें बहुत कम पैसे में किया, मगर धीरे धीरे आप जब मेहनत करते हो तो आपकी गुडविल इनहेंस होती है, तो आप उस ट्रेडमार्क की रॉयल्टी लेते हो। तो देखिए हमने उसमें इन्वेस्ट किया था, अब वो बाद में रॉयल्टी के रूप में हमें रिटर्न दे रहा है, तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हो गया अर्निंग। और वैसे ही फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो गया, आपके पास सरप्लस है तो अकाउंट में बिजनेस क्या करेगी, तो उसको कहीं लगा के उसको इनहेंस करेगी। तो इस तरीके से तो हमारे पास डेटा है, उसको हमें स्ट्रक्चर्ड करना है। ये हमारा स्लाइड 2 था। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड 3 है हमारा। तो इसमें आप पाएंगे कि अच्छा ये हमारे थे कैश फ्लो अकाउंट का 1.3, यानी अभी तक थोड़ा सा लाइन लंबा गया सेशन, अगेन इसको कंप्रेस कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस देखे थे, बाकी 4 to 11 हमने अकाउंटिंग के अदर एज्यूम्पशंस देखे थे, और कुछ कन्वेंशंस। तो हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर सोर्स भी बताया, 11th गोयल एंड गोयल के चैप्टर 3 में था, उसको हमने सोर्स बुक के तौर पे यूज किया। फिर एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमने एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अपने फर्म का 2 पेज शेयर किया, 01 का, जिसपे हमने जीएसटीएन पोर्टल पे कंप्लायंस किया है। उसके जरिए हम लोग अपने अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को कैसे धीरे धीरे अकाउंटिंग के स्ट्रक्चर डेटा की ओर मूव कर रहे हैं उधर। और 1.3 में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें कितने हेड्स के तहत रेलिवेंट डेटा चाहिए वो हमने दिखाया। 1.1 में हमारी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितने डेटा आएंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो आएंगे, फाइनेंसिंग से। ये कॉर्पोरेट के संदर्भ में हम यहाँ बोल सकते हैं, और आप लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी सोच सकते हैं कि हमने अपने लीगल सर्विसेज से MSCP से कैसे रिवेन्यू जनरेट किया, उसको कहीं इन्वेस्ट करके कितना जनरेट किया, या फाइनेंशियल एक्टिविटी से कितना जनरेट किया। तो आपके इंडिविजुअल लेवल पे आपका कैश फ्लो क्या कहता है, तो ऐसे आप अपना भी मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे भी लर्न करेंगे। तो वैसे दूसरा देखिए इसमें PL अकाउंट है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट एक तरीके के पूरा सीट होता है, उसमें छोटे छोटे कई स्टेटमेंट्स होते हैं। हर एक स्टेटमेंट में कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज को डेटा के टर्म में दिखाते हैं, नंबर के टर्म में दिखाते हैं। उस नंबर का होना ये बताता है कि कोई न कोई एक संव्यवहार किया गया है, एक एक्टिविटीज की गई है जो मनी मिजरेबल है। तो इसलिए हम लोग ऐसे इसको ऐसे बोलते हैं कि काउंटिंग या डेटा। तो आते हैं PL अकाउंट पे हम जाएंगे, तो PL अकाउंट में कैसे कैसे डेटा हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो देखिए PL अकाउंट में ऐसे डेटा हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं कि टोटल रिवेन्यू एनुअल। आप कहेंगे इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, अगेन हम अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे जाएंगे। टोटल रिवेन्यू एनुअल, हम यहां से भी देख सकते हैं टोटल रिवेन्यू एनुअल हमारे रिवेन्यू हो गए ये, ठीक। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ये देखिए काम की चीज है। स्लाइड का 2.2 जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एनुअल बेसिस पे। एनुअल बेसिस पे आप अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कैसे निकालेंगे। हमने मंथ वाइज अपनी डायरी में कभी भी वेंडर्स को, या हमारे लेटरल एंगेजमेंट में जो आए हैं, या जो स्टेशनरी है, जो हमारे एक्सपेंसेस, जो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आए हैं, प्रोडक्शंस में जो भी ऑपरेशन में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑपरेशनल इनकम कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
पर डे का मेंटेन करते जाएंगे, वीकली करते जाएंगे, मंथली आएगा, हर मंथ का करते जाएंगे और 12 मंथ का जोड़ेंगे, एनुअल आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी डेटा हमें मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत उसमें एवरेशन रहेगा बट इट्स ओके। हम 10% 20% का इधर रहेगा बट उसको हम लोग धीरे समराइज कर लेंगे। वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब आपके पास ऑपरेटिंग रिवेन्यू हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो जाएगा, तो आप अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। ऑपरेशनल प्रॉफिट कि आपके ऑपरेशन में कितना प्रॉफिट है। फिर देखेंगे डिप्रिसिएशन कैसे है, कि मतलब आपने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल यूज किया है वो भी समय के साथ पुराना होता है। तो डिप्रिसिएशन के लिए क्या है, कंपनी एक्ट में आप देखेंगे तो उसमें बाकायदे दिया हुआ है शेड्यूल की फर्नीचर का डिप्रिसिएशन के लिए इंडेक्स क्या आप फॉलो करते हैं, गजेट का डिप्रिसिएशन क्या है, आपके बाइक का, आपके फोर व्हीलर का, हमारे बॉडी का। तो हमारे ये जो इन्वेस्टमेंट फर्नीचर, स्टेशनरी, स्पेस, इस सब के डिप्रिसिएशन, अब इसको भी हमें अपने बिजनेस का डिप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकमिंग ईयर्स में, क्योंकि अभी हम लोग कैपेक्सिंग करते जा रहे हैं, ऑफिस को रोल आउट करते जा रहे हैं। उसमें जो इन्वेंट्रीज जो भी हम लोग कैपेक्सिंग कर रहे हैं तो वो डिप्रिसिएट भी तो होगा, तो डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट हमारा एनुअल कितना दे रहे हैं, कहीं कहीं पे हमने बिजनेस को लेवरेज किया है, तो लेवरेज किया है तो जो उसका रेट हमने दिया है, इंटरेस्ट पे किया है, वो भी हमको इसमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। और हमारा टैक्स कितना जा रहा है, तो जनरली B2B में ही लीगल सर्विसेज RCM बेसिस पे टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। तो जो हमारा टैक्स एनुअल है वो कंपनी, ये ध्यान दीजिए कि ये एंटिटी लेवल पे हम बात कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी लेवल पे, आप अपने लेवल पे भी सोच सकते हैं। वैसे ही नेट प्रॉफिट, जब ये सब हो जाएगा तो उसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट हमारा एनुअल कितना आया। तो अब आप देखोगे पीएल अकाउंट मेंटेन करने जाएंगे तो आपको, अगर आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डेटा हो तो आप बाकी सारी चीजें निकाल लेंगे, रिवेन्यू आपके पास है ही, तो हमें अब धीरे धीरे अपने एक्सपेंसेस को भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये हमारा पीएल अकाउंट का रेलिवेंट डेटा है जिसकी मदद से हम पीएल अकाउंट मेंटेन करते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फोर्थ, अब देखिए हमारे सिलेबस में जो हमारे आज के इनविटेशन है उसका देखेंगे बैलेंस शीट। यानी हम लोगों ने अभी क्या किया, सॉरी अभी इससे पहले थोड़ा सा इसी पे रहे, पीएल हमारा जो टॉपिक सेकेंड था उसमें 2.1 में P&L स्टेटमेंट, उस पर हमने बात कर दिया कि P&L स्टेटमेंट में, P&L स्टेटमेंट में, इसको पीएल अकाउंट बोलते हैं, पीएल स्टेटमेंट बोलते हैं, में हमारे ये छोटे छोटे डेटा, अगर हेड्स के तहत डेटा रहेंगे तो अपना पीएल अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। से अब फर्म के लेवल पे कहे तो सिर्फ हमें अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, अगर वो ट्रैक कर लेते हैं तो हमारा भी पीएल अकाउंट बन जाएगा, तो हमारा कैश फ्लो अकाउंट बन जाएगा, पीएल अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, पीएल अकाउंट में हमने टॉपिक में रखा है कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट का हमने यहाँ पे टॉपिक रखा है 2.2 में, और प्रोडक्ट इकोसिस्टम रखा है, तो इसको अगर आप देखने जाएंगे तो कॉस्ट मैनेजमेंट हम लोग प्रीवियस ट्रेनिंग सेशंस में भी डिस्कस किए थे। तो अगर हम आपको एक रेफरेंस के लिए बोले तो जो हमारा जो ट्रेनिंग सेशंस था तीसरा 1/5/2025 को, उसमें हमारे सिलेबस में था कॉस्ट मैनेजमेंट। उसके रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट कार्ड, जब रिपोर्ट कार्ड हम लोग बनाए थे तो उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया है कि कॉस्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ कास्ट प्लस मैनेजमेंट। आप लोग देखिएगा प्रीवियस वीडियोस में मिलेगा। तो कास्ट मैनेजमेंट में क्या कि कास्ट प्लस मैनेजमेंट ये बनता है कॉस्ट मैनेजमेंट का, हमने ऐसे किया था। और ये पहला ऐसा कंटेंट था जिसको हमने चैट जीपीटी पे इसका ऑडियो हमने जनरेट किया था, बहुत ही अच्छा था, 6 मिनट का। तो इसमें हम देखेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट में कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। उसमें हम लोगों ने उस समय डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कौन कौन से फैक्टर हैं, मैन पावर के लेवल पे कौन कौन से फैक्टर हैं, वैसे ही मटेरियल लेवल पे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो उस स्ट्रक्चर को अगेन हम यहाँ के रिपोर्ट कार्ड में उसको वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे इम्प्रूव मैनर में, ताकि हमारा वो रिपोर्ट्स यहाँ पे अगेन अपने को अपग्रेड कर सके। तो कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट प्लस मैनेजमेंट, वो कौन कौन से फैक्टर है जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर है जो मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो उसी में हमने मैनेजमेंट के स्टेप्स बताए थे कि इनिशिएशन होता है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है, मॉनिटरिंग होती है, क्लोजिंग होता है। ये सब चीजें हम लोगों ने अपने उस फोर्थ जो हमारा 11/5/2025 का जो हमारा लेटर जनरेट हुआ था और ट्रेनिंग हम लोग होल्ड किए थे 11/5/2025 को। हाँ, तो उसमें
ये था, ठीक। तो ये हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट में, नहीं कॉस्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, मैनेजमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब ये हमारे इसमें फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेशन में क्यों आया? क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पे एक्सपेंसेस की ट्रैकिंग करेंगे, अपने अकाउंट के कैसे डेटा को अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे, ये सब चीजों को हम करेंगे, या कहीं पे डिप्रिसिएशन हम निकालना शुरू करेंगे, या इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा कॉस्ट कंट्रोल और बेहतर होगा। वैसे ही मैनेजमेंट के एंगल से देखेंगे कि कहीं पे अगर कोई ऑफिस अच्छा परफॉर्म कर रही है, कम मैन पावर है, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर दे रही है, तो किसी आदमी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बेहतर है 2.3 के तहत, तो वहां पे मैन पावर को और इंडक्ट करेंगे ताकि एक आदमी पे लोड न बढ़े, तो उसका मैनेजमेंट और अच्छा होगा। तो ये इस तरीके से हेल्प करेगा। वैसे ही प्रोडक्ट इकोसिस्टम में देखें कि जब आप पीएल अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो जब आपके पास, असल में प्रोडक्ट इकोसिस्टम हमारे थर्ड वाले टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड है, एसेट लायबिलिटी और कंपनी एनालिसिस, तो इसको प्रोडक्ट इकोसिस्टम को हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। मगर यहाँ पे चूंकि इसका टाइम स्टैम्प तैयार करना पड़ता है यूट्यूब के कंटेंट पे, तो हम थोड़ा सा डिस्कस यहीं पे कर लें। प्रोडक्ट इकोसिस्टम के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने मीटिंग्स में। अगर हम देखें, इसका सोर्स हम आप लोगों से शेयर कर दे रहे हैं। तो हाँ, तो प्रोडक्ट इकोसिस्टम, जस्ट मिनट, 8, 9, 10, 11, पोस्ट में, हाँ यस, जो हम लोगों ने ट्रेनिंग होल्ड किया था 11 नंबर पे इंडेक्स है, और ये ट्रेनिंग था एस्केलेटर नंबर, ये हाँ 6/9/2025 को जो हम लोगों ने ट्रेनिंग ये हाँ 14/9/2025 को जो हम लोगों ने ट्रेनिंग होल्ड किया था, उसमें एक टॉपिक था प्रोडक्ट इकोसिस्टम पे। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि लिटिगेशन प्रोडक्ट, नॉन लिटिगेशन प्रोडक्ट, मिसलेनियस प्रोडक्ट और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट इकोसिस्टम में इस 4 सेगमेंट में हमारे प्रोडक्ट डिजाइन हम लोगों ने कैटेगराइज किए हैं। इन सारे प्रोडक्ट इकोसिस्टम में हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग, कॉस्टिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, और उसमें आप अपना यूएसपी क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजों पे हम अगेन R&D कर पाएंगे और इम्प्रूव कर पाएंगे अगर हमारा पीएल अकाउंट सरप्लस दिखा रहा है तो इसलिए यानी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसे हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट को इनहेंस करती है और हमारे प्रोडक्ट इकोसिस्टम को कैसे इंप्रूव करती है, वो आप देखेंगे। वैसे ही एक बच्चा है, हम लोग का टाइम भी खत्म हो रहा है। अभी हम लोग का टाइम भी मीटिंग का खत्म हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा हम लोग फास्ट पेस चलेंगे। इन द मीन टाइम कोई भी इनकमिंग कॉल होगा उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अब आता है जैसे कि टॉपिक 3 है, बैलेंस शीट अकाउंट है। इस पे हम आते हैं, यहाँ हमारा जो स्लाइड है, मैडम मॉडरेटर, I would beg for making delay of 5 minutes. Kindly permit me 5 minutes more so that I could conclude my presentation. बैलेंस शीट में आप देखेंगे एसेट लाइबिलिटीज। एक्चुअली इसमें जो हम लोग अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, जिसमें एक जगह कॉन्सेप्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने कहा डबल एंट्री सिस्टम होता है। यानी एक जगह डेबिट है तो एक जगह लेफ्ट साइड को एंट्री होगी तो राइट साइड भी उसका आएगा इम्पैक्ट। इसको हम लोग मैनेजमेंट में बोलते हैं बटरफ्लाई इम्पैक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट। वैसे अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेबल नाम्स है। तो हमारी बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो बैलेंस शीट भी बड़ी मजेदार है। इसमें एसेट को, इसको जब डिफाइन किया गया है, जब आप पाएंगे तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ऐसे बोला गया है, फार्मूला इसका है। तो यानी हमारी लाइबिलिटीज, अब कहेंगे ये है क्या, लाइबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, ये सब हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिसेस में सीखेंगे, आ जाएगा। बस एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए वैल्यू जनरेट करता है। लाइबिलिटीज वो होता है जो किसी का, हमने पैसा ले रखा है, हमें उसके बदले में डिलीवरी करनी है, ये लाइबिलिटीज है। और इसमें एक आता है कि कैपिटल क्या है, कैपिटल वो है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सपोज किसी ने सर्टेन अमाउंट दिया, हम लोगों ने एसएलएच एंड सीओ फाउंड किया, उसमें हमारे जितने पार्टनर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो उनके जो कंट्रीब्यूशन मनी होगी वो एक तरीके का कैपिटल है, उसको इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है,
वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी रहती है। तो आप पाएंगे कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक, एक एग्जांपल के लिए हम दे कि सपोज सल्लच है, हमने अपना पेड अप कैपिटल दिखाया 1 लाख का, और उसमें कंट्रीब्यूशन लिया सर्टेन पीपल्स का, तो हमारा हमने 1 लाख रुपया किसको दे दिया, सटन हाउसिंग कंपनी को। तो अब वो उसके पास हो गया, वो एक्चुअली उसको किसने दिया है, कुछ उसके पार्टनर्स ने दिए हैं, तो पैसा कंपनी का नहीं है, कंपनी के ऊपर एक तरीके की लायबिलिटी है कि वो पैसा उनके पार्टनर्स को उसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो 1 लाख ये वो कंपनी के लेवल पे वो लायबिलिटी साइड से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, लायबिलिटी है। और अभी इसको हम लोग और भी आगे जाके डिटेल करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग उस नॉमेनक्लेचर में इतना ही पकड़े कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में किस तरीके के डेटा आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। पर्पस हमारा इस ट्रेनिंग सेशन का ये है, ये पहला सेमी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सेशन है, इसलिए बहुत ज्यादा जार्गन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, कोई ऐसा स्टेटमेंट एंट्री नहीं आएगा, बस एक अपने नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड पीयर्स के लिए हम छोटे छोटे अकाउंटिंग के नॉमेनक्लेचर ले रहे हैं ताकि हम अपने प्रैक्टिसेस में इसको रिफ्लेक्ट कर पाए। तो एसेट, लायबिलिटीज और कंपनी एनालिसिस। बैलेंस शीट में हम ये 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो 3.1 में हम आते हैं, अपने एसेट्स पे आते हैं। तो एसेट्स में कैसे कैसे, तो करेंट एसेट्स आप इसमें पाएंगे, यानी 3.1.1 इसका मतलब और भी एसेट्स होते होंगे, हम कहेंगे यस। करेंट एसेट्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म में ही आपके लिए पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कैश, अब इसमें कैसे कैसे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, ये क्या है, एक्चुअली एक तरीके का टेबल होता है। एसेट के कॉलम में आप कैसे डेटा को रिफ्लेक्ट करोगे, तो वो कोई कैश है या कैश का कोई इक्विवेलेंट है, तो आपका करेंट एसेट्स वाले कॉलम में रिफ्लेक्ट होगा। वैसे शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया है जो जल्दी ही हमको फिर रिटर्न दे रहा है, तो हमारे लिए करेंट एसेट का पार्ट होगा, वो उस वाले कॉलम में ये डेटा एंट्री होगी। वैसे अकाउंट में कोई रिसीवेबल नेट है, रिसीवेबल्स है, किसी के द्वारा हमको प्राप्त होगा भी जल्दी ही, 3 महीने शॉर्ट टर्म में या 1 महीने, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल हमारा शॉर्ट टर्म एसेट है, करेंट एसेट्स में आएगा। वैसे ही कोई इन्वेंट्रीज है जो जैसे ही बिकेगी कैश में आ जाएगा, तो ये सब हम अपने अकाउंटिंग में दिखाएंगे। जैसे सपोज हमने आर्काइव्स या हमने कुछ लिटरेचर जनरेट किए, हमारी इन्वेंट्रीज में पड़ा हुआ, हमने उसको सेल नहीं किया, तो इन्वेंट्रीज है हमारा शॉर्ट टर्म, वो करेंट एसेट है, उसको हम सेल करेंगे तो देखिए एटवर्स उसका मनी वैल्यू मिल जाएगा। तो वैसे ही सप्लाईज, तो ये इन्वेंट्रीज कहेंगे, इन्वेंट्रीज को भी आप अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट करेंगे, हम कहेंगे यस, क्योंकि उसको बिल्डअप करने में, डिजाइन डेवलप करने में कॉस्ट आया है ना, उसमें कॉस्ट अभी लॉक्ड है, उसको जैसे ही हम सेल करते हैं तो अनलॉक होता है उसका वैल्यू। वैसे सप्लाईज, ये सब शॉर्ट टर्म में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब जो है हमारे करेंट एसेट्स में आते हैं। वैसे 3.1 में करेंट एसेट्स हो गए। नेक्स्ट में क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो जानते हैं, ये भी हमारे एसेट्स के ही पार्ट है। वैसे ही हमारे और क्या है, 3.13 में देखिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब हमारे एसेट्स में हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे है ना, हमारा ये स्लाइड 3 है, टॉपिक नंबर 3 है, 3 के अंदर 3.1 एसेट है, 3.2 लाइबिलिटी है, 3.3 कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसी के आगे हम आते हैं 3.1, यानी एसेट के अंदर क्या क्या हमें डिस्कस करना है, वो ये सब चीजें हैं। वैसे ही इसके अगला स्लाइड हम लेंगे, तो 3.1 मतलब ये भी एसेट के अंदर ही है इन्वेस्टमेंट। वैसे ही ये देखिए 3.1 के अंदर ये है, 3 मतलब ये भी एसेट के ही अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं। प्रॉपर्टी में प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब एसेट्स के पार्ट, लैंड इंप्रूवमेंट, बिल्डिंग इक्विपमेंट, ये सब चीजें, ठीक। और इसमें स्लाइड 8 पे हम जाएंगे, तो ओके 3.1 में ही इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, यानी एसेट्स में कुछ फिजिकल एसेट्स होते हैं, कुछ इंटेंजिबल, यानी कुछ टेंजिबल एसेट जिसको हाथ से छू सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, और वैसे कुछ होते हैं जिसको हम परसीव नहीं कर सकते अपने हाथ से, सेंसेस से, मगर वो होता है, जिसमें गुडविल है या अदर इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये गुडविल भी एक तरीके का एसेट होता है, हालांकि इसके ढेर सारे प्रो एंड कॉन से हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो ये सब देखिए हम लोग एसेट्स में ये सारी चीजें, इससे रिलेटेड डेटा हम लोग जनरेट करेंगे, रिफाइन करेंगे, सिस्टमेटाइज करेंगे, और अपने अकाउंटिंग बैलेंस शीट में उसको रिफ्लेक्ट करने की इच्छा रखते हैं।
तो उसके बाद ये स्लाइड 8 हो गया। स्लाइड 9 में हम पाएंगे, अब देखिए यानी अब तक जो हम लोग पढ़ाए 8 तक, ये हमारे सब एसेट्स के हमारे रेलिवेंट हेड्स थे, जिसके अंदर मनी के टर्म में हमें डेटा फीड करनी है। कहां से आएगा? हमारे एक्टिविटीज से, हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से ही आएगा। ओके, अब आते हैं हम अपने लाइबिलिटीज के तहत। तो वो हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड 9 से है, यानी 3.2 के लाइबिलिटीज, इसमें कैसे कैसे डेटा आते हैं इस हेड में। तो लाइबिलिटीज में देखिए सब आएंगे कि करेंट, जैसे हमारा करेंट एसेट होता है वैसे करेंट लाइबिलिटी होती है, और लॉन्ग टर्म हमारी एसेट्स होते हैं वैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी होती है। लॉन्ग टर्म मतलब जो 1 साल से ज्यादा, 1 फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा, यानी अगर हम कहें कि लॉन्ग टर्म एसेट मतलब ऐसा कोई एसेट जो 1 साल के बाद हमें वैल्यू जनरेट करके देगा, वैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो 1 साल बाद हमें किसी को चुकता करनी। करंट एसेट जो हमारे लिए तुरंत 1-2 महीने 3 महीने में जनरेट हमें वैल्यू देगा, वैसे करंट लाइबिलिटी मतलब जो 1-2-3 महीने में ही हमें पैसा देना है किसी को। तो देखिए शॉर्ट टर्म लोन पेमेंट पेबल, जल्दी ही अगले ही महीने ईएमआई भरना, ये एक हमारे करंट लाइबिलिटीज है। करेंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कोई लॉन्ग टर्म डेट हमने लिया है मगर 5 लाख का लोन लिया, हर साल 70,000 देना पड़ रहा है ईएमआई, तो उसके जो 1 साल का ईएमआई का टोटल वॉल्यूम है वो देखिए हमारे शॉर्ट टर्म में आ गया। तो करेंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट। आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं? ये फर्म को जब भी हम बिल्डअप करते हैं उसमें कुछ हमारे कैपिटल्स लगते हैं, तो कैपिटल की लेवरेजिंग जब करते हो आप, तो उसके लिए आप ईएमआई पे करते हो, वो आपके जो कैश फ्लो होता है वही से जाता है। अगर आपका एक कैलकुलेशन गड़बड़ रहेगा तो कैश फ्लो पे क्राइसिस होगी, और आपकी कंपनी बिजनेस तो प्रॉफिटेबल होगा बट कैश आपके पास नहीं होगा, जिसके चलते आपकी इन्वेंट्री जो आपके वेंडर से अलार्म रेज करने लगेंगे, और बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल, डिलीवरी मॉडल है, फिर भी आप बिजनेस को स्मूथली रन नहीं कर पाओगे। तो इन नटसेल कभी भी कैश फ्लो का कम होना बता रहा है कि हमारा हिडन कास्ट, हमारा एसेट लाइबिलिटी का कहीं मिसमैच हो रहा है। हम शॉर्ट टर्म एसेट्स को कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल में लगा दे रहे हैं या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लगा दे रहे हैं। तो ये इसके भी ढेर सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं, हम लोग धीरे धीरे इसको इंप्रूव करेंगे। तो देखिए वैसे अकाउंट पेबल, कोई अकाउंट है जिसको हमें पे करना है। एक्रूड कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, किसी को हमें कंपेंसेट करना है, बेनिफिट देना है, वो हमारे ऊपर एक्रूड हो चुका है। ये सब शॉर्ट टर्म हमारे, ये सब करंट लाइबिलिटी है जो जल्दी ही हमें किसी को देनी पड़ेगी, नहीं तो लीगल नोटिस रहेगा या और कुछ होगा। इनकम टैक्स पेबल्स, ये हमें टाइम समय सीमा में भरना पड़ता है। अदर एक्यूट लाइबिलिटीज, जो कोई बीमार हो गया, कुछ ऐसी घटनाएं होगी, वो भी लाइबिलिटीज है। और डिफर्ड रिवेन्यूज, जो रिवेन्यूज हमने डिफर कर दिया है, वो भी एक तरीके की लाइबिलिटीज होती है जिसको हमें रिकवर करना है। जो हम अक्सर बोलते हैं फलाने उनसे एक बार बात कर लीजिए, देख लीजिए। तो ये हमारे देखिए लाइबिलिटीज के अंदर ये सब डेटा हमारे आ रहे हैं। 3.2 लाइबिलिटीज, उसके अंतर्गत ये सब आए। और भी इसमें डेटा है लाइबिलिटीज में, और भी चीजें डेटा रिफ्लेक्ट होती है। जैसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हमने देखा, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। इसमें नोट पेबल्स, बॉन्ड पेबल्स, डिफर्ड इनकम टैक्स, जो रिलीवेंट होगा उसको हम लोग भरेंगे, जो नहीं होगा रिलीवेंट फॉर्म के लिए उसको छोड़ देंगे, नहीं कर देंगे। वैसे ही 11th में ये इंडिविजुअल लेवल पे भी आप लोग अपने लिए समझिएगा, काम आएगा। कंपनी को हटा के आप अपने को रख के अपने से रिलेटेड डेटा भरेंगे, आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। स्टॉक होल्डर इक्विटी, कॉमन स्टॉक कितना है, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, तो ये सब इसमें आते हैं हमारे। ये सब हमारे लाइबिलिटी वाले कॉलम में आएंगे, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो आते हैं। और 12th में देखिए ये आते हैं, ये हमारे इस तरीके से लाइबिलिटी वाले कॉलम में थे यहाँ तक, ठीक है, 11 तक। अब हमारा इसके बाद आता है एक पॉइंट है कंपनी एनालिसिस, यानी अभी हम 3 पॉइंट के तहत क्या एसेट और लाइबिलिटीज में सिर्फ हेड पढ़े थे, और उस हेड में हमारे किस तरीके के डेटा आने वाले कल में रिफ्लेक्ट होंगे, एक उसका हमने अपनी टीम के साथ डिस्कशन शेयर किया था। अब आते हैं लास्ट में कंपनी एनालिसिस। कहेंगे ये कैसे, आप यहाँ पे टॉपिक रखने का पर्पज क्या था? इसका पर्पज ये था कि अभी तक हमने क्या किया कि अपने अनसाइंटिफिक, हम अगेन क्या है कि हम एक बूट स्टेप कंपनी के तौर पे हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, धीरे धीरे चीजों को स्ट्रक्चर्ड किया, ऑर्गेनाइज किया है, फिर उसको डिलीवरी प्रोसेस को भी कंसिस्टेंट करने का प्रयास हो रहा है, ऑटोमेट करने का प्रयास कर रहे हैं।
उसके जितने रिसोर्सेज हैं, उसके अकाउंटिंग, उसकी ट्रैकिंग प्रॉपर करने का प्रयास हो रहा है, लगातार उसमें वैल्यू एडिशंस करते जा रहे हैं। इन सब के जरिए आप अपने प्रोसेस को सिस्टमेटाइज करते हो, ऑटोमेट करते हो, वैल्यू ओरिएंटेड आप डिलीवरी को डिजाइन करते हो, जिससे हम अपने कंज्यूमर्स, अल्टीमेट लिटिगेंट को बेटर बेनिफिट ट्रांसफर कर पाए इन द फॉर्म ऑफ इफिशिएंट इफेक्टिव मैनर में। तो आप जब उनको देते हो, और तो एक क्वेश्चन बनता है कि आपकी कंपनी के इस पूरे पूरे प्रोसेस में हर कोई करा नहीं, हम खुश हैं। पूरे पूरे हमारे जितने फोरम है, हर जगह पे एडवोकेट, नॉन एडवोकेट या जो भी उसमें सप्लाई चेन में है, देखेंगे तो डे एंड नाइट दे आर मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज इन द नॉइज बेस्ड ऑन द अनप्रूवन डेटा that in my practice experience, I didn't get any persons who generally does not uh, prefer to exaggerate the data. I used to ask that show me your ITR. How could I believe on your exaggerated data? Could you give me any proof that which shows that your statement are genuine and verified? तो कभी किसी ने हमको ऐसा नहीं दिखाया, but only they are used to make lot of hollow noise. So I would not prefer to hear this kind of cacophony. हमारा ये कहना है कि आपने जो किया, इसके बेसिस पे आप उसकी एनालिसिस करिए। व्यक्ति हो तो व्यक्ति का, ब्रांच हो तो ब्रांच का, और कंपनी हो तो कंपनी का, या कोई प्रोडक्ट है तो उसका। ये कंपनी एनालिसिस में कौन कौन से हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइड के जरिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रखा है। और हम कहते हैं कि आप हमें भी एसेस करें कि अच्छा हाँ, एक कंपनी का ग्रोथ पाथ कैसा है, इसके मैन पावर का ट्रेनिंग ग्रूमिंग स्किल कैसी है। तो उसमें कंपनी एनालिसिस में जैसे हम कहते हैं कि कंपनी एनालिसिस में एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, हमने अपने स्लाइड में ऊपर था। कैश फ्लो में, पीएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट। आप देखो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कुछ इसमें इंडिकेटर्स है जो बताते हैं कि हम कैसे कंपनी के प्रोग्रेस को एनालाइज करें, ठीक है। तो और भी पैरामीटर्स है, बट यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स एक क्लू के तौर पर शेयर करें। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, हमने अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हमने दिखाया आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग कैसे अपना कौन सा डेटा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे दिखाया था ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। फिर एबिडा मार्जिन, एबिडा मार्जिन होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन मार्जिन। ये कहाँ पे हमको मिलेगा? जिसे हम लोग पीएल अकाउंट जब मेंटेन कर रहे थे, तो उसमें अगर हमारा एक्सपेंसेस पता हो तो हम लोग वहां पे एबिडा भी निकाल लेंगे। वैसे पैट मार्जिन होती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी पीएल अकाउंट से ही निकल जाएगी। ये सब चीजें, सारे डेटा आपके जब आ जाएंगे तो इसकी बेसिस पे किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं। एक बार क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, शुरुआत में हमने कहा कि बतौर सर्विस प्रोवाइडर यू मस्ट मेंटेन अ डीमेट अकाउंट, आई वुड टीच यू हाउ टू इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर एसेट्स। उसमें हमने कहा था अपने HCO, HRC से और भी बाकी लोगों से कि अपना डीमेट अकाउंट मेंटेन करिएगा, वो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी को बेहतर करने में मदद करेगा। अब हम अपने उस प्रॉमिस को अगेन यहाँ पे रिकॉल करते हैं। तो अब देखिए, ये कुछ ऐसे हमारे ऐसे पॉइंट्स है जिसकी मदद से किसी भी स्टॉक या कंपनी के बारे में हम गेस करते हैं कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। वैसे ही पैरामीटर हम अपने लिए भी लगाएं ताकि हम अपने को ही एसेस कर पाए कि हमारा कैसा है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो एबिडा मार्जिन, पैट, ईपीएस, ये सारे किसी भी एक पैरामीटर्स पे किसी भी 10, 20, 50 कंपनी को में से बेस्ट वन को आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। मगर ध्यान दीजिएगा, सिंगल पैरामीटर के बेसिस पे जज करना बहुत ही हाई स्किल्ड वर्क है। इसलिए आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स को उसमें इस्तेमाल करके देखो कि कौन कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। वैसे ही अपने भी कंपनी को जज करने के लिए नंबर्स ऑफ पैरामीटर यूज करिए। उसी के क्रम में एक है पैट हो गया, ऐसे ईपीएस है। ईपीएस कहेंगे क्या है कि अर्निंग पर शेयर, इसको बोलते हैं ईपीएस को। अब कहेंगे ये क्या है, हमें नहीं पता। ये अकाउंटिंग में जो स्टॉक मार्केट में लगाते होंगे उनके लिए काफी यूजफुल वो है।
नॉमेनक्लेचर है। जो नहीं लगाते हैं उनके लिए हम अगर बात करें इसको तो हाँ, जैसे व्हाट इज ईपीएस और ईपीएस शो क्या करता है, दो क्वेश्चन बनेगा। तो एक होता है ROE, एक होता है ROI और एक होता है ईपीएस। ये तीन डेटा को हम लोग अक्सर देखेंगे और ये बड़ी काम आएगा है कि कहाँ काम आएगा। तो अभी हमने इसका एक छोटा सा कंटेंट हम देख रहे हैं, नोट्स बनाए थे आप लोग के प्रेजेंटेशंस के लिए और anyway in the meantime if you get I get those then okay ratio benefit, yes I get it. No, हाँ yes, what is EPS, अर्निंग इसको बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। एक्चुअली इसको निकालने के कई मेथड होते हैं, कई फार्मूला होते हैं। ये बताता क्या है, बस ये यानी ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इसको बताता है। यानी कि अगर किसी कंपनी का, इसका फार्मूला जैसे लिखते हैं कि नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड अपॉन एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। अब बहुत टफ लग रहा होगा, इसको ऐसे न सोचे तो क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर मतलब अगर आपने पूरी कंपनी का अर्निंग अगर आपको पता है, ऊपर लिखिए एक साल का, उसका शेयर वैल्यू नीचे लिखिए और उसको डिवाइड करिए, सिंपली आप निकाल लेंगे अर्निंग पर शेयर इसका क्या है, यानी प्राइस ऑब्लिक अर्निंग, सॉरी हाँ पी, प्राइस ऑब्लिक ई से इक्विटी होता है, ऐसे भी निकालते हैं। ये बताता है क्या है, ये किसी भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। इसको डिटेल में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट छोटा छोटा हमने बताया ईपीएस। ईपीएस बताता है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। वैसे ही स्केल ग्रो, स्केल भी देखा करिए कि किसी कंपनी ने अपने को कैसे स्केल किया है, स्केल या उसके अंदर स्केलेबिलिटी है कि नहीं। अगर उसके डेटा रिफाइंड नहीं है, स्ट्रक्चर रिफाइंड नहीं है, मैन पावर को कंसिस्टेंसी नहीं है उनके काम में, तो डेफिनेटली वो कंपनी अपने को स्केल नहीं कर पाएगी। और इसीलिए एसपीसी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वैल्यू एडिशन हम लोग बार बार करते जाएंगे और मीटिंग के कंटेंट भी रैंडम नहीं रखेंगे, पीछे वाले से कलेक्ट करके, ये हमारी स्केल ग्रो को दिखाता है। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्री ग्रो वर्सेस कंपनी ग्रो। आपके बिजनेस का ग्रोथ जैसे हमने कहा 25% हमारा नेशनल एवरेज क्या है, वैसे ही आप अपने कलीग से कंपेयर कर सकते हैं। मायने अब कहेंगे वो तो इस पिछले साल इतना ग्रो किया, हमारा अगेन कहना है कि सिर्फ एक ही पैरामीटर पे कंपेयर मत करिएगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं कि स्केल के चांसेस कितने हैं, डेटा स्ट्रक्चरिंग कैसी है, तो बाकी के पैरामीटर्स पे कैसा परफॉर्मेंस है उनका। तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे जज करिएगा तो आप अपने को भी एसेस कर पाएंगे, अपने ब्रांच को भी, अपनी कंपनी को भी। वैसे ही इंडस्ट्रीज ग्रो वर्सेस कंपनी ग्रो, हमारी लिटिगेशन सेगमेंट में क्या ग्रोथ पैटर्न है, तो वैसे ही आप अपने कोर एक्टिविटीज के देखेंगे। नॉन लिटिगेशनल में या आपकी जो प्रोडक्ट इकोसिस्टम में बाकी के सेगमेंट में कैसा चल रहा है और आपकी कंपनी का उन सेगमेंट में कैसा परफॉर्मेंस है, तो ऐसे भी देखें। वैसे एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी एक पैटर्न है। अगेन आई कमिटेड मिस्टेक, जस्ट आई लूज द पेज where I have written those useful content. Anyway, ROE stand for return on equity and ROI stand for return on investment. अब इसको आप ऐसे समझे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे देखा जाता है। और कैश फ्लो हमने बता ही दिया है। तो कहेंगे ROE और ROI में क्या अंतर। ROE होता है इक्विटी पे कितना रिटर्न और ROI होता है टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न है। यानी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होती। तो हमारा अब कहेंगे कौन सा पैरामीटर किन परिस्थितियों में हम इस्तेमाल करें और उस पैरामीटर से हमें क्या हेल्प मिलती है। तो जैसे हमने कहा ना कि ईपीएस से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी दिखता है, वैसे ही ROE जो होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है, इससे
हमारे मैनेजमेंट का इफिशियंसी दिखता है 3.3.7 कि हमारा मैनेजमेंट कितना इफिशियंटली अपने इक्विटी को मैनेज कर रहा है। और ROI जो होता है ये हमारा होता है कि हम किसी बिजनेस में पैसा लगाए कि ना लगाए, हम अपने यहाँ ब्रांच खोले कि ना खोले, एनीवे यानी ब्रांच खोले कि ना खोले ROI काम आएगा, ब्रांच को रन करे कि ना करे ROE काम आएगा, और आपका जो EPS था वो आपके अपने प्रॉफिटेबिलिटी को। तो इस तरीके से हमारा स्लाइड का ये था कंपनी एनालिसिस, और इस तरीके से हमने एक प्रयास किया अपने इस टाइम जोन में रहते हुए अपने टॉपिक को कंक्लूड करने का। अगेन आई जंप आवर टाइम लिमिट ऑफ 1 hour, बट these all were the presentation from my side. Over to you, Shikha Madam. Kindly raise the question. Kindly take the questions if somebody want to Okay. put into. Okay. Over to you. I'm just making my screen sharing mode off. Thank you for the lecture, sir. Now it's time to question and answer. If you have any question, you may ask from CTO, sir. Kindly ask question. Yes, ma'am, I have a question. Okay. Sir, you have said that there is difference between ROE and ROI. तो आपने बताया कि Okay. वो अगर ऑफिस सेटअप करना है तो वो ROE का आप देखिए डेटा, और अगर ऑफिस को रन करना है तो ROI का डेटा देखिए। इस पे हल्का सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, ये हल्का सा कंफ्यूजन में है मुझे। Okay. Okay. Next question. Thank you. Next, HRC, sir. If you have any question, you may ask. Am I audible? Yes, Okay. I Kindly have a ask. question with regards to what you said, that if anything which is not in the form of measurement of money, then it should not be recorded in the accounts. And how would that be measured? Because at times there are situations where we put efforts where there are not directly involvement of money, but there are some chances in a consequential manner where money involvement is imminent. Very good. I got it. Hmm. I have a question. Okay. What are the legal relevancy of the this balance sheet and profit and loss account in this management organization? Anybody else? No. Okay. First question, what is difference between ROI and ROE? तो एक तो होता है कि किसी भी फार्मूला को आप कैसे समझेंगे, तो ROE जनरली ROE का जो फार्मूला है ROE इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये स्टैंडर्ड फार्मूला, नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। अब कहेंगे अब ये अकाउंटिंग का है, हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी हम बता देंगे, क्वेश्चन भी आया है तो वहां पे हम बता देंगे। तो ROE जैसे सपोज कहीं पे ROE 20% आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि 0.20 ऑफ प्रॉफिट फॉर एवरी 1 रुपीज शेयर होल्डर इक्विटी, ये स्पेसिफिक। ओके, अच्छा पहले तो इसको समझ लें कि ROE इक्वल टू नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, यानी आपने जो नेट इनकम जनरेट किया है वो न्यूमरेटर में रखिए और शेयर होल्डर की जो इक्विटी है उसको डिवाइड में। सपोज हम SLR 03 के लिए लगाए तो 03 का शेयर होल्डर इक्विटी डिनोमिनेटर में रखेंगे, उनका जो नेट इनकम आया 03 से जो आया ऊपर रखेंगे, करके निकालेंगे तो आ जाएगा उनका ROE। वैसे ROI कैसे आएगा, करेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने 100 रुपए का एक आइटम खरीदा, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मगर उसके मदद से हम 120 रुपए का काम कर लिए, या कुछ ऐसा कि वहां पे लगते ही वो 120 रुपए का हो गया, तो कॉस्ट उसका 100 रुपए है बट उसका करेंट वैल्यू 120 का है। तो यानी करेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी हमने कोई चीज खरीदा, सिंपल लैंग्वेज में हमने कोई चीज खरीदा
100 रुपए में, तो उसको डिनोमिनेटर में रखिए, न्यूमरेटर में 100 रुपया इधर रखिए, और वो वहां पे लगने के बाद उसका वैल्यू 150 हो गया, तो 150 माइनस 100/100, ये हमारा ROI हो गया, यानी 50/100, 50 ऐसे करके, तो ये हमारा ROI। तो ROI का प्रिंसिपल फार्मूला करेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपान कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा ROI आता है। आप कहेंगे इसकी जरूरत कहां पड़ती है? जैसे हमने कहा ना कि ROI से आप देखो कि कहीं पे हमें पैसा लगाना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के चलते उसका जो सडन बेनिफिट हो जा रहा है, तो इससे जो परसेंटेज मिलता है ये हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए हमको गाइड करता है कि हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, हमें इक्विटी छोड़ दीजिए, हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। यहाँ पे हम इन्वेस्ट करने के बाद इक्विटी ओनर रहेंगे क्या, किस कैपेसिटी में हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है। इक्विटी की कैपेसिटी में करना ही एकमात्र इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कई एंगल से इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए बताता है, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट टूल्स है ये ROI। हर इन्वेस्टर को यूनिक की मालिकाना लेना चाहता, वो बस लगा के देखता है कि मौके पे अभी हम करेंगे, 1 महीने बाद हमको इतना दे देगा तो ओके हम लगा देंगे, ऐसा कुछ। तो ROI ये होता है, इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में हेल्प करता है। और ROE जो होता है वो हमारी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दिखाता है। क्यों? क्योंकि आपने इक्विटी में अपना पैसा लगाया है, आपने इक्विटी में किसी चीज को दिया है, और वो इक्विटी उसके यहाँ पड़ी रहती है, लाइबिलिटी सीट पे पड़ा रहता है, और वो फिर उसी से बिजनेस डेवलप कर रहा है, डेवलप करके वो जो नेट इनकम दे रहा है आपको। इसलिए ROE का फॉर्मूला है ROE इक्वल टू नेट इनकम अपान शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो आपके इक्विटी पे वो जो नेट इनकम अगर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मतलब उसकी ROE लगातार बढ़ती जा रही है, यानी आपके उस इक्विटी पे नेट इनकम बढ़ता जा रहा है। नेट इनकम कब? अब नेट इनकम मतलब ग्रास इनकम में से बाकी सारी चीजों को माइनस करने के बाद जो बचता है वो नेट इनकम होता है, मतलब एबिडा के बाद, पैट के बाद। तो आप पाओगे कि अगर कोई बिजनेस का ROE अच्छा हो रहा है, इसका मतलब उसका मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंट है, एबिडा के बाद, पैट वोट होने के बाद देख रहा है कि अच्छा उसका ROE निकाल रहा है। तो यानी ये इनका मैनेजमेंट, यानी ROE का अच्छा होना मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बताता है, ROI का अच्छा होना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बताता है। ये है हमारे पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर छोटे में। डिड यू गेट योर आंसर? यस सर। ये आते हैं सेकेंड पॉइंट, HRC क्वेश्चंस की किस तरीके के डेटा को हम मेजरेबल डेटा मानेंगे मनी के टर्म में। और दूसरा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था कि देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच कुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इनटू अकाउंटिंग टर्म, देन इन सच सिचुएशंस हाउ कुड वी मैनेज आवर रिसोर्सेज लॉस और स्पिल ओवर पिलफरेज। तो इसके दोनों तीन साइड, पहला कि कैसे ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंटिंग में दिखाएं और क्यों उसी को दिखाते हैं। एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स के अपने अकाउंटिंग के अपने एज्यूम्शंस हैं, उन्होंने अपने लिए ये डिसिप्लिन ओन किया है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक्टिविटीज जो मनी मेजरेबल कॉन्सेप्ट, जो मनी के रूप में मेजर किया जा सके, और जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कंजर्वेटिव हो, एक्चुअल बेसिस पे हो, गोइंग कंसर्न इससे, और डबल एंट्री सिस्टम। तो जो मनी के रूप में जिसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, सिर्फ ऐसे ही एक्टिविटीज को हम अकाउंट के स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट मानेंगे। अगर नहीं है तो लाख उसके पीछे पैसा लगा हो इनडायरेक्ट वर्जन में, अकाउंट में उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, कहीं और आप रिफ्लेक्ट कर लो। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे, एक था फाइंडिंग ऑफ द लास्ट गुड्स, मतलब आप रिलेशनशिप दोज रिजेंबलिंग लाइक कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था मगर रिजेंबलिंग लाइक कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट में जगह दिया गया ना। वैसे ही कुछ ऐसे एक्टिविटी जो मनी मेजरेबल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, तो आप अकाउंटिंग में आप नहीं दिखाएंगे, हाँ कहीं और दिखाइए। तो एक तो हो गया कि कैसे डेटा को हम इसमें मनी मेजरेबल डेटा को ही इसमें क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं, ये काउंटिंग स्टैंडर्ड ने अपने लिए रखा है ताकि उसमें एक वो रहे, कंसिस्टेंसी रहे। अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मिलियन बिलियंस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डेटा होते हैं, उनका जो डेटा बनेगा वो इतना इन्फ्लेट हो जाएगा कि
कंट्री की कंट्री कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए मनी मिजरेबल डेटा को लेते हैं। एडवोकेसी में भी यही, हमारे एडवोकेसी में बहुत टफ है इसको अडॉप्ट करने के हुनर बिल्डअप करना। यानी हम अपनी एडवोकेसी में हर एक एक्टिविटीज को कैसे देखें कि उसमें मनी मिजरेबल डेटा कौन सा कैसे रिफ्लेक्ट होगा। ये स्किलिंग का टास्क, ये एक स्किल्ड वर्क है और डेफिनेटली इसमें आपकी फॉर्म बेहतर वर्क करना पसंद करती है। और हमेशा कहते हैं कभी कोई इंटर्नशिप पे गया तो आज जो सीखा, हमने कहा कि अपने इंटर्नशिप पे कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करो, तो वह 40 रुपया 50 रुपीज या इतना आया, तो उसकी कॉस्ट ऑफ लर्निंग देखिए, वो अपने एक्सपेंसेस का डेटा मेंटेन कर रहा है। और वहां पे करते करते वहां पे सपोज उस मंथ में कोई अगर उसने वैल्यू जनरेट किया तो वैल्यू जो जनरेट करके इनकम मिला उसमें उसका एक्सपेंसेस देखिए वहां पे माइनस करेगा, नेट इनकम उसका आ जाएगा। एडवांस में उस समय नहीं आया है, कभी दो वो ज्ञान 3 4 6 महीने या साल भर बाद कहीं पे यूज होगा, तो वहां पे जो डेटा उसने इनकम जनरेट किया एक्टिव हुआ 6 साल बाद, मगर उसका एक्सपेंसेस आ गया है 6 साल पहले, तो उसमें से वो माइनस कैसे करेगा? ऐसे तो नहीं होगा, मगर वो अपने उस महीने का जो डेटा है उसको तो मेंटेन कर ही सकता है। हमारा ये कहना है कि यूनिट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कंपोनेंट वाइज दोनों डेटा हमें नहीं मिलेगा। हम कमोडिटी सेगमेंट में नहीं है कि 100 रुपए का खरीदे हैं 150 का बेचेंगे। हम लोग सर्विस डोमिनेटेड सेगमेंट में है जिसमें ढेर सारे हिडन कॉस्ट होते हैं, तो हम हिडन कॉस्ट को हमें ट्रैक करना ही पड़ेगा। नहीं है तो आपको अपने एवरेजिंग के बेसिस पे एक रैंडम डेट एक एवरेज डेटा उसमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और उससे ताकि आप अपने अपरेंट लॉसेस को कंट्रोल कर सकें और अपने अपरेंट प्रॉफिटेबिलिटी को और स्टैंडर्डाइज कर सकें। अगेन आई वुड से इट्स स्किल्ड, ये काफी हाई स्किल्ड मांगता है। तो इसलिए पहला पॉइंट था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि मनी मिजरेबल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में लेना कैसा रहेगा। हमने कहेगा किसी भी फील्ड में ये अप्लाई करेगा। हम कहते हैं आपके पास सरप्लस है, आप प्रो बोनो करिए, कौन मना करता है, मगर सर्वाइवल या अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए, ऑफिस को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए। तो एक तो हो गया कि मनी मिजरेबल, और दूसरा कि कैसे हम हर डेटा को मनी में मेजर करें। दूसरा तीसरा पॉइंट ऐसे कि कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज होती है जो मनी मिजरेबल नहीं होती, तो उसका क्या करें। हम कहेंगे कि ऐसे एक्टिविटीज को मिनिमाइज करें, जितना ही मिनिमाइज करेंगे कहीं न कहीं से आपको उसका बेनिफिट ही होगा। तो मिनिमाइज करते करते आप पाओगे कि लाइफ के 3 तरीके के डेटा जनरेट करेंगे। एक मनी मिजरेबल कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाला, और एक होता है जो एनी हाउ कैन बी कन्वर्टेड इनटू अकाउंटिंग टर्म यानी एवरेजिंग करके, और तीसरा ऐसा डेटा जिसका मनी मिजरेबल है ही। तो तीसरे वाले डेटा को एकदम निगेट करें, एडवोकेसी में कोशिश करें। कहेंगे फिर सोशल वर्क प्रो बोनो कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि जैसे गुडविल भी देखिए अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, गुडविल को भी आप अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हो। अगर सोशल इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी गुडविल को, विजिबिलिटी को बेहतर करता है। कुछ ग्रे एरियाज है, फ्रिंज एरियाज है, जो समय के साथ हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंप्रूव करेगी, उम्मीद करते हैं। एससीजेड एरिया में एप्लीकेबल भी कुछ चीजें हो रही है। तो जब ग्लोबली कनेक्टेड और वर्ल्ड और भी इंटेंसिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बढ़ेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी लीगल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का इंटरनल मैकेनिज्म हो, चाहे इसके रेगुलेटरी बॉडीज हो, वो भी कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगी ताकि इस फील्ड में भी वैल्यू एडिशन संभव हो सके। अदरवाइज डे बाय डे कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इतना अनबियरेबल हो जाएगा कि ये बहुत ही रिस्क रिवार्ड रेशियो जस्टिफिएबल नहीं रहेगा। ये वीडियो थ्रू दिस कंटेंट आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टेक होल्डर ऑफ द globe that they must observe a kind of accounting practices in their legal delivery service model, so that they could minimize the apparent leakage or losses of the values
और डेफिनेटली ये हमारे वर्ल्ड ग्लोबल जो वेल्थ क्रिएशन का एक या वैल्यू जनरेशन का एक हम लोग का कॉन्सेप्ट है, हर कोई वही कहता है। वैल्यू नॉट ओनली नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस भी होती है, सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो हम सोसाइटी को, वर्ल्ड को बेटर वे में डिजाइन करने में मदद कर पाएंगे, सर्व कर पाएंगे। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट, सेकेंड वाला आंसर था HRC का। क्वेश्चन के 3 सेगमेंट थे, हमें उसमें क्या करना है और क्यों करना है, ये हमारा आंसर था। डिड यू गेट योर पॉइंट मिस्टर HRC? Yes, sir. Thank you. And last one is about usefulness of accounting in the legal practices. As I told you and shared with you the company analysis 3.3 point, किसी भी इंडिपेंडेंट चेंबर इन और इंडिपेंडेंट काउंसिल या किसी एंटिटीज जो कि गोइंग कंसर्न है, उसकी एनालिसिस का होना जरूरी है, उसके इंटरनल मेंबर्स के द्वारा, एक्सटर्नल मेंबर्स के द्वारा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो लाइन ऑफ प्रोग्रेशन है वो क्या है, आपकी फ्यूचर विजिबिलिटी क्या है। और आप उसकी मदद से, हमने एक जगह बोला था कि कॉस्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट इकोसिस्टम, ये भी हमने बोला था जो हमारे प्रेजेंटेशन का पार्ट था 3.2 एंड 3 पे, कि अगर हमारे यहाँ पे डेटा सपोर्ट और फेवरेबल रहेगा तो हम कॉस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव कर पाएंगे और हम प्रोडक्ट इकोसिस्टम को और इनोवेटिव बना पाएंगे। और चांसेज है कि हम अपने मेजर पाई को डाइवर्ट कर सके प्रो बोनो सर्विसेज के लिए, या इंटर्नशिप को और इंसेंटिवाइज कर पाए, सब्सिडाइज कर पाए, ताकि हमारे इंटर्नीज को कॉस्ट ऑफ लर्निंग बहुत ज्यादा पे न करना पड़े। तो इस तरीके से हमारे अकाउंटिंग के डेटा हमारे बिजनेस को और भी ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे। It is my stand about the adoption of the accounting practices into our legal service delivery ecosystem of the firm. Did you get your answer, Madam Siado? Yes, sir. Okay. With all this, um, uh, um, there is one independent question. Before going to take feedback from our HRC, sir, I'm just recalling events some a few months back. I told him that wait, you will get a kind of investment, is a set of investment skill on the basis whereof you will be in positions to invest into any particular stock. These are those movements, and these particular movements we have traveled across this turmoil path of suffering and happiness, and but I'm still stand by my promise through this platform and through this organization, I would like to enhance basic to enhance a level of financial literacy, so that each and every family member could optimize their resources in their own way. So I would prefer to have feedback from our HRC. Okay, over to you, HRC. Sir, Uh, kindly give your feedback of the session. as you said that previously we have discussed about these things, and I was too much in hurry to come to this point, but everything has its own time and destiny, at what time it will arrive. Now the things are getting unraveled, that how the financial literacy and financial education are being imparted to us as an organization. As the new members have also joined, they are also getting enlightened with the financial literacy, and many more things you have introduced which are very new to us, and we will definitely learn them. Since we were facing trouble regarding the production and the that floor things, so we were not able to cope up with the
we were not ready at that time. I believe that you were knowing this thing well, that we were not much ready to embrace this and accept it. So this is the right time that you are putting the small doses of the financial literacy to us. This is what a guardian of a firm understands, when to provide and what to provide and how much to provide. Okay. Closing remark. Closing remark in the form of Madam Siado. Okay, this is the ending of the lecture. Now, this is a very wonderful lecture. I appreciate it. And the time is very healthy. We are running out of time. Okay, thank you. Thank you. With all this, kindly Kindly visual yourself. respected CTO, kindly keep the video in unrecorded mode. Yes. Kindly visual yourself for 2 or 3 Okay. Okay. seconds. Take it. Is it done? Done. Okay. Thank you, sir.